All right. Thank you everyone for joining Brain to Body Tribe Meetup, which happens every Friday at 6 p.m. Every week, not every day, sorry. Every week on Friday at 6 p.m. we hold this tribe meetup where we are trying to build a community. हम एक community build करना चाहते हैं of like-minded people जो एक ही तरीके से सोच विचार करते हैं, अच्छे सोच विचार रखते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हमको बताया गया है उनको थोड़ा हम डाइसेक्ट करके उस पे डिस्कशन करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में हम ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। सो यू फील बिलोंग हियर। अगर आपके बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच विचार हैं, यू विल हैव सीन कि आप किसी और से बात नहीं कर पा सकते हो, है ना? सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी वांट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी to come and interact with us and put your views without any inhibition. कोई आपका कुछ भी सवाल है, it is most welcome. Do not think कि अरे ये इतना stupid सा question है, मैं क्यों पूछूं? No, nothing like that. Please ask your questions. आपका जो भी है, we will do 100% best to answer them to the most authentic answer that we can ever find for you. With that, I'll give a quick intro of mine. My name is Soumya. I'm a food technologist and a dietitian. Currently have taken a huge interest in transforming people's life. So that's why Brain to Body was co-founded to change people's life. And by changing people's life, we want to create a revolution. We want to create a new generation of people who are thinking very differently than the way other people were thinking. Thank you everyone for coming today. Supriya. Thank you so much everyone for coming. And you guys know me, this is Supriya Nehra, engineer by profession, but now I have shifted my profession to engineer people, kind of transforming people now. So yes, I'm here with all of you and thank you so much for joining in. यहाँ पर जो हम ट्राइब में बातें करते हैं, जो हम लोग एक दूसरे की, it is not just you will be asking questions, of course you will be suggesting us also like how we can go forward with it. कोई भी चीज़ है, आप सभी के सभी बहुत ही स्किल्ड लोग हो जो भी यहाँ पर हम लोग हैं, तो हम लोग बस एक चर्चा का विषय हम लोग एक चुन लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग सब बात करते हैं। सो आज का चर्चा का विषय बहुत ही ज्यादा हम सभी को भाने वाला है कि हम सभी को सौम्या काफी काफी बार ना कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज फास्टिंग, और फास्टिंग शुड बी डन और नॉट। बहुत लोग सोचते हैं कि फास्टिंग करना भी चाहिए हम लोगों को कि नहीं करना चाहिए, फास्टिंग हमारे सेहत को कहीं खराब तो नहीं कर देता, या फास्टिंग करने से हम लोग डिप्राइव्ड होते हैं या स्टार्व करते हैं, वैसा वाला। So this is completely different. Today you'll be knowing something really great about fasting or not fasting. Let us just keep it a secret right now. And Soumya, you go forward and break the secret. Okay, thank you, Dee. Thank you. So we will be having a conversation between me and Didi, and you guys can pitch in wherever you think you want to add something. तो आज हम दीदी ने तो भांडा फोड़ दिया है ऑलरेडी फास्टिंग बोल के. सो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फास्टिंग टुडे. ऐसे नहीं है आप लोगों को नहीं पता है कि क्या है, right? Everybody knows what's fasting, right? As soon as we say fasting, ek, you get that sweating in your body, right? अरे यार, fasting means not eating food, right? वही ख्याल आता है. So आज we are going to go beyond that belief. We are going to tell you what is fasting, why you have to do fasting, and what will it do to you. Not that is where we are there, or why it is part of every culture as well. एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ पेट खाली करने का प्रोसेस नहीं है, ये एक इनर क्लेंस भी करने का, एक स्पिरिचुअल रीसेट करने का एक तरीका भी है. एब्सोल्युटली. तो हम लोग जब फास्टिंग के बारे में सोचते हैं, हमें कि इज देयर एनी डिस्टर्बेंस सौम्या? या आई विल जस्ट म्यूट देम. या सो फास्टिंग के बारे में जब हम सोचते हैं कि कई बार हमारा उद्देश्य कुछ होता है फास्ट रखने का, किसी का उद्देश्य ये हो सकता है कि हम लोगों ने पूजा पाठ के चक्कर में या रिलीजियस रीजंस हमारे होते हैं, दैट इज प्योरली गुड, डिवाइन रीजन है हमारा। लेकिन साथ साथ में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड और बॉडी दोनों की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, क्लेंजिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फास्टिंग। सो फास्टिंग एक्चुअली आप लोगों को बाद में आप लोग अपने आप डिसाइड करोगे फास्टिंग इज गुड और नॉट, बट वॉट वी
finally I have concluded after all the researches and all that fasting actually is divine and we can do fasting. अपने बॉडी और माइंड की मास्टरी के लिए हम लोगों को फास्टिंग की जरूरत होती है और हमें करना चाहिए। तो आज हम लोग पूरी तरह से साइंस और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए फास्टिंग उचित है और कितना उचित है, क्यों हम लोग फास्टिंग करनी चाहिए और कैसे हम लोग फास्टिंग को कर सकते हैं। So this is what we'll be learning today. Yes. तो एज वी जस्ट सेड कि फास्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि कॉन्शियसली आप फूड को अवॉइड करते हो, राइट? इट इज एब्स्टिनेंस ऑफ फूड, नॉट हैविंग फूड इन योर बॉडी इज कॉल्ड फास्टिंग। एम आई राइट? ओके, बट डिड यू नो कि फास्टिंग की दो तरीके होते हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री? तो वॉलेंट्री तरीका सौम्या वो होता है जहाँ की हम जानबूझकर फास्टिंग रखते हैं, कि हमें ये पता होता है कि हमें फास्टिंग रखना है, हमको फास्ट करना है। क्यों करना है फास्ट? मे बी हमारे कुछ रीजंस होते हैं कि हम लोग बॉडी को अपना डिटॉक्स करने के लिए या फिर माइंड को डिटॉक्स करने के लिए हम फास्टिंग कर सकते हैं। क्यों करते हैं हम फास्टिंग? कि हमको अपने आप जानबूझकर जो फास्टिंग करना पड़ता है वो है हमारी इनवॉलेंट्री फास्टिंग, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द डाइजेशन। अगर हम लोग अपने आप को डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, आप लोगों ने सभी को पता होगा कि खाना जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हम लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, डाइजेशन प्रोसेस को उसको बहुत ज्यादा समय लगता है। आर ब्रेन इज द ऑर्गन विच रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, बट डाइजेशन की जब बात आती है तो ब्रेन इज गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन एंड दैट होल ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग शिफ्ट टुवर्ड्स योर गट। आपके गट को, आपकी जो डाइजेशन के प्रोसेस को चालू करने के लिए आपका जो ऑक्सीजन है वहां पर आपकी बॉडी का सारा मैकेनिज्म वहां पर शिफ्ट हो जाता है। सो फास्टिंग करने से क्या होता है ना, उस प्रोसेस को ब्रेक मिलता है कि आपने अपने बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस को ब्रेक दिया थोड़ा सा, और इसमें आपके बॉडी की जो वियर एंड टीयर है या बाकी जो प्रोसेसेस होने हैं, या आपको दिमाग की क्लैरिटी चाहिए, किसी भी चीज में फोकस आपने बढ़ाना है, तो आप अपने आप को फोकस्ड रख सकते हैं उस चीज में। ये हो गया वॉलेंटरी, ठीक है, जहां पे आपने खुद डिसाइड किया है, खुद कंट्रोल लिया है और ये बोला है कि भाई मुझे नहीं खाना है तो मैं नहीं खा रही हूं या खा रहा हूं, ठीक है। दूसरा है इनवॉलेंट्री। ये कब आते हैं? कई साल पहले बहुत ज्यादा इनवॉलेंट्री फास्टिंग होती थी। क्यों? बिकॉज फेमाइन होते थे, यानी कि बारिश नहीं होता था, फेमाइन ड्रॉट होता था, या फ्लड्स होते थे, या वॉर होता था, इन्वेजन्स होते थे, या डिमांड सप्लाई नहीं होता था फूड का। तो तब लोग इनवॉलेंटरी, उनका चॉइस नहीं है, फिर भी उनके वातावरण के वजह से, उनके सिचुएशन के वजह से वो इनवॉलेंटरी फास्टिंग पे चले गए होते, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फास्टिंग। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इनवॉलेंटरी फास्टिंग, हम सीजन टू सीजन, इनफैक्ट एवरी 3 मंथ्स हम फास्टिंग करते हैं। डिड यू नो व्हाट इज दैट फास्टिंग? दैट इज व्हेन यू गेट सिक। आप जब सिक हो जाते हो तब भी आप एक इनवॉलेंटरी फास्टिंग मोड पे चले जाते हो। बात अलग है कि हम फास्टिंग नहीं करते हैं उस टाइम पे। You know what? That is the most saddest thing that you can do to your body. Your body is swollen up. आपका या थ्रोट पे इच हो रहा है, हर्ट हो रहा है, आपकी बॉडी में दर्द है, आपका टंग का टेस्ट चला गया है, फिर भी आप, अरे 8 बज गए ब्रेकफास्ट खाना है, 12 बज गए लंच खाना है, 9 बज गए खाना खाना है, आप ये प्रोटोकॉल अभी तब भी फॉलो करते तो भूख भी नहीं लग रही, यू आर टेलिंग टू योर मदर, टू योर फादर, और अपने आप से भी बोल रहे हो मुझे भूख नहीं है, फिर भी आप वक्त को देखते हो और बोलते हो अरे खाने खाने का वक्त, एज इफ वी थिंक दैट इफ वी डोंट हैव दोज मील्स वी विल डाई। वी आर नॉट गोइंग टू डाई पीपल। In fact, your body is saying, please stop having food. Like Didi just told, digestion takes most energy. आप जितना खाते हो उसका 80% एनर्जी उसी फूड को डाइजेस्ट करने में चला जाता है। और आप क्या खाते हो जब सिक हो? व्हाट डू यू प्रिफर टू हैव? मिल्क, चाय कॉफी, ब्रेड के साथ, बिस्किट के साथ, है ना? मैगी, मैगी इज अनदर थिंग। अगर यहाँ पे आई हैव सीन मेनी पीपल, इफ दे गेट कोल्ड और कॉफ, द फर्स्ट थिंग दे गो, मुझको मैगी चाहिए।
Why you want to eat Maggie? Because you want to eat Maggie because जो इसमें फ्लेवरिंग्स डाले हैं, जो इसमें उसमें एडिटिव्स है, वो अपने ब्रेन को ना लाइट करता है, आपको स्टिमुलेशन मिलती है, आपको लगता है आप खाना खा रहे हो। आपको ब्लैंड फूड खाना इसीलिए बोलते हैं, हॉस्पिटल्स में आपको ब्लैंड फूड क्यों देते हैं, इजी फूड क्यों देते हैं, सॉलोवेबल फूड क्यों देते हैं, ताकि आपका डाइजेशन सिंपल रहे, ताकि फटाफट फूड डाइजेस्ट हो जाए और मैक्सिमम आपका इम्यूनिटी पे आपका एनर्जी स्पेंड हो, क्योंकि देयर इज इन्फेक्शन इन योर बॉडी, द बॉडी नीड्स टू फाइट दैट इन्फेक्शन, उसके लिए आपको फास्टिंग पे जाना होता है। सो प्लीज, नॉट जस्ट कोल्ड कॉफ, इफ यू हैव कॉन्स्टिपेशन, इफ यू हैव लूज मोशन, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, प्लीज गोलियां ले लेके आप खाना मत डालो। योर बॉडी सेइंग प्लीज गिव मी रेस्ट, प्लीज 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 गिव मी रेस्ट, फास्ट करो। एंड ये वहम है, ये मिथ है कि आप नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, ये वहम है। दिस इज अ मिथ पीपल टुडे। इफ यू आर टेकिंग वन थिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग, लेट इट बी दिस, खाने से एनर्जी नहीं मिलती है। ओके, आई नो इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट आई एम डूइंग, खाने से एक्चुअली में एनर्जी कम मिलती है। जब आप बिना खाने पे रहते हो ना, तब आपका एनर्जी हाई होता है। आप खुद ही पूछो अपने आप से, डू आप बड़ा सा ताली खाने के बाद आपको यू फील लाइक डूइंग समथिंग, और व्हेन यू हैव हैड खिचड़ी or when you had soup you feel like doing something? This is something you need to ask to yourself. यस सौम्या, आई रिमेम्बर कि जब हम लोगों का स्कूल में एग्जाम होते थे, कुछ होता था, तो हम लोग अपने डेलिबरेटली अपना खाना कम कर देते थे। लगता था खाना खाएंगे तो नींद आ जाएगी, फिर पढ़ाई पढ़ाई कैसे होगी। सो फोकस गाइस, फोकस इंक्रीज करने के लिए हम लोग पहले से ही करते थे कि अपना खाना कम कर देते हैं। सो सबसे ज्यादा खाने की चीज हम लोगों को कहाँ से मिलती है? हमारा हवा, पानी, सूरज की रोशनी। So guys, if you are having all these things in actual adequate amount, adequate water, adequate air, that is आप अगर जो breath work करते हो ना, जो conscious breathing करते हो वो, and taking proper sunlight, तो आपके बॉडी का बहुत अच्छी तरीके से जो मैकेनिज्म है वो चल सकता है। देन जब फूड को हम लोग खाने का, सौम्या ने क्यों बोला कि फूड इज एक्चुअली नॉट गिविंग एनर्जी? बिकॉज वी आर ओवर ईटिंग एवरीथिंग, वी आर ओवर डूइंग इट। बेयर मिनिमम जो है, हम लोग बेयर मिनिमम में काम नहीं चलाते हैं, हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो ज्यादा खाना खाने से हम लोग फूड को खा नहीं रहे हैं, हम अपने बॉडी को साथ में अब्यूज कर रहे हैं। सो सौम्या, द थिंग इज पीपल आर गेटिंग, हम लोग हो ना, दिस इज अ वेरी नाइस थिंग टू नो कि हम लोग ना औरों की थाली में देखते हैं तो हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। सौम्या ने उस दिन मुझे बोला कि दीदी मैंने ना पोहा खाया, तो आई डिड नॉट टेल हर, बट आई माई सेल्फ मेड पोहा फॉर मी। वाई? बिकॉज वी आर सी फूड, वी लव सी फूड, वी लव सीइंग फूड, यू नो। आंखों से देखकर हमारे पेट के अंदर भूख लगती है। फ्रेंड ने पोहा खाया तो मुझे भी पोहा खाना है। फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन फ्रेंड के घर में कुट्टू के आटे के पकौड़े बन रहे हैं, तो भाई मुझे भी कुट्टू के आटे के पकौड़े खाने हैं। सो लाइक दैट वी आर डूइंग इट। मेरी फ्रेंड है सौम्या, उनके नवरात्रों में ना, उनका जो भाई, मेरी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है, उसका भाई खाली फास्ट नहीं रखता था, बाकी द होल एंटायर फैमिली वाज फास्टिंग दैट टाइम। सो कहती कि ना प्रिया, मेरे भाई ने ना मुझे बाद में कंप्लेन किया कि नहीं, फास्ट नहीं करने से मेरा बहुत नुकसान हो जाता, तुम लोग मुझे कम पकौड़े देते हो। तो फास्ट मुझे करना है ताकि हमें कुट्टू के आटे के पकौड़े खाने की मिले, या यू नो साबूदाने के पकौड़े या वड़ा एंड ऑल। सो दैट इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। हम लोग देख कर, पीयर प्रेशर के कारण या देख कर हम लोग खाने को खा रहे हैं। That is what making us, you know, adaptable to all those things. That is pushing us to the survival mode, Soumya. We do not know that. Yeah, totally. हम the concept of fasting, हर from North India to South India इतना वेरीड है, इतना रूल्स कितने अलग अलग है। सेम, if we take महाशिवरात्रि, it is done differently in the top, it is done differently in middle, it is done differently in the south, है ना? एंड द शॉकिंग न्यूज इज, जो फास्टिंग में जो खाना बनता है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, वहां पे ज्यादा बनता है। एंड पीपल, आप नेचुरली आपके दिमाग में ये फिट, अरे मैं फास्टिंग कर रही हूँ ना, तो हर मुझको 2 घंटे भूख लगने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू ईट मोर। इफ यू सी, यू ईट मोर ड्यूरिंग फास्टिंग देन यू ईट ऑन योर नॉर्मल डेज। फास्टिंग का असली मीनिंग ही चला गया है वहां पे। फास्टिंग का मीनिंग एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड, हियर इट इज लविंग फूड, मेकिंग न्यू फूड,
मेकिंग हाई कैलोरी डेंस फूड एंड ईटिंग। आप बॉडी को रेस्ट कहाँ दे रहे हो? इट इज लाइक दिस इज अ वेरी गुड एनोलॉजी दी आई थिंक आई वांट टू शेयर इज दैट कोविड के टाइम में ना हर किसी को छुट्टी मिल गई थी, पता है, हर किसी को छुट्टी मिल गई थी। बट छुट्टी किसको ना मिली, वो थे मम्मी, जो होम मेकर्स हैं। बिकॉज दे हैड टू वर्क 20x, बिकॉज सब लोग घर पे हैं। लाइक सब लोग, फॉर द होल वर्ल्ड इट वाज फास्टिंग, वर्क फास्टिंग है, लाइफ फास्टिंग है। बट फॉर अ पर्सन हु कुक्स एट द होम, उनके लिए वो इट इज डबल, है ना। सिमिलरली फास्टिंग के टाइम यही हो रहा है, यू हैव टू गो अवे फ्रॉम एवरीथिंग। नहीं, वी आर पुटिंग मोर इन टू आवर बॉडी। दैट इज वाई दिस डजेंट वर्क इन अ लॉन्ग रन। जो फ्रूट फास्टिंग्स भी करते हैं ना, जो फ्रूट फास्टिंग भी करते हैं, आई हैव सीन देम, मैं स्पेशली महाशिवरात्रि के टाइम, दिस हैपेंस नियर माय होम ओनली। मेरे फ्रेंड्स बहुत लोग महाशिवरात्रि के दिन फास्टिंग करते हैं। Every 2 hours they are eating fruit. Why? Because they are fasting. And that creates a lot of insulin spike in you people. And that insulin spike results to more fat storage. Water retention हो जाता है, fat storage हो जाता है। आपको शायद next दिन and I've seen many people after fasting also the next day when they stand on the scale it is high only. बिकॉज आपका पानी रह गया है आपके बॉडी के अंदर, आपका बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है जो रेस्ट एक्चुअल में मिलना था, है ना। अम, एंड लिवर बेचारा क्या करे? लिवर आप, मतलब आप वैसे तो रिफाइंड शुगर नहीं दे रहे हो, बट फ्रुक्टोज तो आपको मिल ही रहा है ना फ्रूट से। इतना सारा फ्रुक्टोज का जो ओवरलोड हो रहा है, तो व्हाई ओनली डोंट थिंक दैट ओनली द फैटी फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैटी लिवर। इट इज नॉट लाइक दैट। आपका जो हम एक्स्ट्रा शुगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज भी अगर ले रहे हैं, एनी फॉर्म ऑफ शुगर हम लोग जो एक्स्ट्रा लोड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग दैट फैटी लिवर इन यू। सो गाइस, अगर हम लोग फ्रूट भी अगर हम लोग खा रहे हैं फास्टिंग के दौरान, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि कैसे करना होता है। ऐसे नहीं कि हम लोग खाली फ्रूट फास्टिंग कर ले, तो उससे आप अपने बॉडी को वही नुकसान ज्यादा कर लेते हो फायदा करने के बजाय। राइट। दैट्स द सेम रीजन। आपको ये वी आर गिविंग यू टुडे, दिस इज एन एवोल्यूशनरी हैबिट, ठीक है। आपको जैसे ही खाना दिखता है आपको खाना खाने का मन करता है, इसीलिए आपको फास्टिंग नहीं जमता है। एंड दिस इज नॉट वन पर्सन प्रॉब्लम, दिस इज एंटायर ह्यूमन स्पीशीज, एंटायर एनिमल किंगडम का प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो एंसेस्टर्स हैं, when they were walking in nature, do you think they saw a tree of fruits and they just walked by it? नहीं ना, वो रुके और जितना हो सके उनका पेट भरा भी है फिर भी उस टाइम उन्होंने खाया। क्यों? Because they knew they will not get that food again, they'll not get that fruit again because they are moving, they were moving. या नोमैड्स थे ना। बट हमारा क्या एक्सक्यूज है? आपका 5 स्टेप्स में आपका किचन पड़ा है, 10 स्टेप्स में आपका डाइनिंग टेबल पड़ा है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। So that's why when you see food, you can't resist it because it is something that is in your DNA, आपके DNA में है। बट आपको चेंज करना है, दैट इज वाई फास्टिंग इज देयर। हमारे नोमैड्स जो एंसेस्टर्स थे उनको इनवॉलेंट्री फास्टिंग हो जाती थी, बट हमको बहुत जरूरी है आप वॉलेंट्री फास्टिंग करो। हर एक बंदे को वॉलेंट्री फास्टिंग करना है। दिस इज फ्रॉम द साइंटिफिक पार्ट ऑफ व्यू, ठीक है। अब तक जो हमने बात किया है ये पूरा साइंटिफिक है। हमने एवोल्यूशन को कवर किया, हमने आपका ब्रेन को कवर किया, लिवर को कवर किया, आपका फिजियोलॉजी को कवर किया। अभी हम बात करते हैं स्पिरिचुअल। व्हाट तो डज स्पिरिचुअलिटी से? या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, सी, अगर हम लोग अगर ह्यूमन फॉर्म में अगर आए हैं, तो वी हैव गॉट अ स्पिरिचुअल रीजन, वी हैव गॉट अ पर्पस इन आवर लाइफ। मंकी की तरह नहीं कि हम लोग, मंकी को देखा है ना सौम्या कभी, कि खाते खाते यहाँ पर उसके ना वो बन जाते हैं, वो गुत्थे बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं। इट डजेंट नो ना कि मेरा पेट भर गया है। वो खा भी लिया तो भी ठूसता रहेगा, और यहाँ पर उसके वहां पर बन जाते हैं पूरे के पूरे ग्लैंड्स होके। तो इसी तरह से गाउस वगैरह में भी ऐसा होता है, दे डू नॉट नो ना, दे डू नॉट हैव दैट हार्मोन विच विल टेल देम दैट नो आई एम फुल। सो वो एवोल्यूशन के हिसाब से उनका हो रहा है, लेकिन हम तो अभी जानवर वैसे वाले तो नहीं है, वी आर इवॉल्व्ड बींग्स। सो आप अगर किसी भी रिलीजन में देखो,
आप सिखिज्म में देखो, आप क्रिश्चियनिटी में देख लो, अगर आप मुस्लिम्स वाले रिलीजन जो है इस्लाम में देख लो, आप हिंदुइज्म में देख लो, हर एक रिलीजन में हम लोगों को सिग्निफिकेंस बताया गया है कि टू फास्ट. Fasting actually not just cleans your body, but it also purifies your mind. क्योंकि आपका जो सारा का सारा जो दिमाग है, वो पूरी प्राणिक एनर्जी जो है आपको तभी मिलती है जब आपके पेट के अंदर खाना कम जा रहा हो, आपके दिमाग के अंदर ज्यादा जा रहा हो. इट नीड्स मोर. दैट इज वाई व्हेन यू आर ब्रीदिंग, व्हेन यू आर डीप ब्रीदिंग, वैसा करने क्यों बोलते हैं कि जब भी आप एग्जाम में जाते हो, आप पेपर लिख रहे हो, आपको नहीं आ रहा, अचानक से आपको आंसर नहीं आता, जस्ट कीप योर पेन. फॉर इंस्टेंस, कीप योर पेन, टेक अ पॉज. पॉज लो और डीप ब्रीथ करो. तो डीप ब्रीथ करने से क्या हुआ कि आपके ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन गया, आपके पेट के अंदर और पूरे के पूरे ब्रेन के जब अंदर ऑक्सीजन गया, तब आपको पता चला कि हाँ, मैंने ये चीज को यहाँ पढ़ा था, और आपको याद आ जाएगा बिकॉज यू टुक अ पॉज. सो रिलीजन में भी सौम्या इसीलिए इस चीज का ट्रेडिशन में है कि हर एक रिलीजन में इसका बहुत ज्यादा गुण बताया गया है कि हम लोगों को अपने आप से जुड़ने के लिए, परमात्मा को जानना भी अगर है, अपने आप को जानना है, तो हम लोगों को फास्टिंग जरूर करनी चाहिए. वो एक दिन की, आपने देखा ना, एक दिन का फास्टिंग नहीं बताते. नवरात्रि होती है तो देयर इज अ सीरीज ऑफ डेज, है ना, कई दिनों के लिए फास्ट करते हैं. रमजान का जब समय आता है तो उसमें अलग तरह की फास्टिंग होती है. बुद्धिज्म में अलग तरह की फास्टिंग होती है. जैनिज्म में अलग तरह की. सो फास्टिंग के लिए एक दिन का उन्होंने समय नहीं बताया, उन्होंने एक सीरीज ऑफ डेज के हिसाब से बताया, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से. हाँ बिल्कुल, दैट इज व्हाट व्हेन यू आर सेइंग, मुझे यही रियलाइजेशन हुआ कि हाउ इंटेलिजेंट दे वेर, है ना, वो लोग कितना इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने अपने आपका जो कल आपने रील बनाया था दीदी, आई लव्ड इट बिकॉज वो कंटेंट हमने डिसाइड नहीं किया था, आपने तुरंत करके डाला था. इंडिया में 12 महीने 13 फेस्टिवल्स, है ना. देर आर मोर फेस्टिवल्स देन दिस, एंड इन दैट फेस्टिवल ऑल्सो आई हैव सीन पीपल फास्ट फॉर सर्टन आवर्स एंड देन हैव दैट फूड. जैसे कि हमारे मामी वगैरह है ना, जब खाना बना रहे होते हैं, दे डोंट हैव फूड इन द मॉर्निंग, दे डोंट हैव दैट ब्रेकफास्ट. वो पानी भी नहीं पीते, कोई कोई किसी किसी के घर में पानी भी नहीं पीते, बिना पानी पिए वो खाना रेडी करते हैं, because they know that there is a sumptuous food in the lunch, correct, in the lunch or in the, you know, later in the evening or something, so they don't do it, they don't have anything. ये पार्ट ऑफ द फेस्टिवल्स भी है, फास्टिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन फीस्टिंग, है ना वो. और जैसे कि आपने बोला एक स्ट्रेच में भी आते हैं. what I talked about was one day festivals, है ना, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो गया वगैरह, इट इज वन डे फेस्टिवल. एंड जब भी मेरी मम्मी प्रिपेयर करती है, वो बिना खाए पिए वो प्रसाद चढ़ाती है, उसके बाद ही वो खाती है. हर ब्रेकफास्ट इज नॉर्मली स्किप्ड ओनली, इट्स नॉट स्किप्ड, शी डजंट. बट कमिंग टू योर नवरात्रास एंड ऑल दैट, जैनिज्म में तो बहुत वास्टली फास्टिंग करते हैं वो लोग. देर इज सीक्वेंस ऑफ डेज, बिकॉज एक दिन में आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, एक दिन में आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा. इट टेक्स फ्यू डेज फॉर योर बॉडी टू फील दैट एनर्जी. बोला जाता है ना कि अगर इस लाइफ में अगर आपको ज्यादा, इफ यू वांट टू बी अलाइव, राइट, यू एक्चुअली डोंट नीड फूड, यू नीड कनेक्ट. आपको कनेक्ट की ज्यादा जरूरी है, जो आपने प्राणिक एनर्जी के बारे में आपने बात किया था. बिल्कुल. तो ऐसा ही है सौम्या कि फास्टिंग करना हम सबको पता है कि हाँ, आपने देखा है नॉर्थ इंडिया में जब करवा चौथ का फास्ट होता है ना, तब पीपल आर नॉट नॉट दैट मच, दे आर नॉट फीलिंग दैट मच हंगर, और स्टार्व नहीं करते हैं. व्हाई? बिकॉज एक तो दे ड्रेस देमसेल्व्स एंड देन दे जॉइन अ ग्रुप ऑफ पीपल ना. पीपल जो है, लेडीज जो लोग है ना, वो सारे के सारे ग्रुप में कथा पढ़ती हैं, एक दूसरे को बताती हैं कि भाई मेरा ड्रेस ऐसा है, मेरा ड्रेस ऐसा है, सो दैट इज व्हाट. जब आप किसी ग्रुप के साथ जब फास्टिंग करते हो, जब देर आर मेनी पीपल विन योर ट्राइब एंड यू आर एन एसोसिएशन में, जब आप होते हो करते हो, तो आपके लिए इजी हो जाता है. तो अदरवाइज अकेले अकेले करने में आपको बहुत भारी भरकम लगता है. सो अकेले करना तो आपको इतना भारी लगता है ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी के नजदीक जा पाते हो, और फिर आपके दिमाग में सारा दिन यही चलता रहता है कि हाय भूख लगी है, मैं ये बना लूं खा लूं. किचन के अंदर रेसिपीज पे रेसिपीज, आप देखना कि इंटरनेट में रेसिपीज की लाइन लग जाती है कि व्रत का खाना. सौम्या, यू गो टू निरुलास कैंप, यहाँ पर निरुलास के नाम से ना फूड चेन है यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में.
वहां पर आपको पिज्जा, व्रत का पिज्जा मिलेगा, आलू के पकौड़े व्रत के मिलेंगे, थाली, एंटायर थाली इज ऑफ, एंड पीपल कैन वाउच ऑन दैट, people are going and feasting on that. So instead of fasting, you are actually feasting. तो नवरात्रों के दौरान ही आप ये कर रहे हो, तो कितना गलत है ये। सच में आप मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग नवरात्रों में जितने भी। सौम्या, यू, आई डोंट नो वेदर यू सी ऑल दीज थिंग्स इन द साउथ और नॉट, बट नवरात्रों में पता है क्या होता है, जिस तरह की तुमने देखा ये कलरफुल चिप्स के पैकेट लटक रहे होते हैं दुकानों के बाहर, वो छोटे छोटे जो शैक्स हैं उनके बाहर भी, तो नवरात्रास के टाइम पे ये जो ये वाले जो है ना, साबूदाना का पापड़, हम्म। चिप्स, आलू के चिप्स, वेफर्स एंड ऑल दोज फ्राइड फूड्स इसी तरह से लटक रहे होते हैं, जैसे कि उस टाइम कलरफुल पैकेट्स में होते हैं। And people consume. See, why they will sell? Because we are consuming na. We हाँ, are going और to the market and buying all those things. और डिमांड है। डिमांड है तो सप्लाई तो वो करेंगे ही। सो हम्म। दिस इज वेयर गाइस वी आर गोइंग रॉन्ग। ने आपको समझाना पड़ेगा हम लोगों को। या एंड फास्टिंग सिर्फ खाना न खाने का इरादे से नहीं है। इट इज टीचिंग यू समथिंग एंड दैट इज डिसिप्लिन, फूड डिसिप्लिन। आपके डिजायर को डिसिप्लिन में रखना वो सिखा रहा है। क्यों फास्टिंग हर फेस्टिवल में आ रहा है? क्योंकि एवरी फेस्टिवल में हमको वो बोलते हैं, जब रामनवमी होता है, व्हेन वी आर डूइंग द रावण संहार, वो बोलते हैं ना, तब अपने अंदर की बुराई को मारो। इट दैट बर्निंग ऑफ रावण का पुतला इज just a sign of what you have to do for internal. Same is with fasting. Fasting teaches you to control your desires. मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि वो बोलते थे, इफ यू कैन मास्टर फूड डिसिप्लिन, अगर आपका जो टंग है आप उसको डिसिप्लिन कर सकते हो, तो आप लाइफ में कुछ भी डिसिप्लिन कर सकते हो। लाइक यू कैन अचीव एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। So true. सो फास्टिंग हमारे एंसेस्टर ने दे के गए हैं कि भाई करो, अपने आप को डिसिप्लिन करो। आप एंड आई हैव नेवर सीन पर्सन हु एक्चुअली फास्ट, है ना। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फास्टिंग करते हैं। उनको एक चीज की क्रेविंग नहीं है दीदी, एक Hmm. चीज की भी क्रेविंग नहीं है। लाइक दे डोंट से मुझे ये क्रेविंग है, मेरे को ये नहीं। दे आर सो लाइट एंड दे आर सो लाइट। उनका एनर्जी इतना बड़ा है, सर्कल बड़ा है, वो चलते फिरते भी आराम से है। एंड सौम्या, हियर आई वुड लाइक टू कोट माय हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड बार बार ये बोलते हैं कि व्हेन यू आर फास्टिंग एंड और ईटिंग लेस ना, सो यू आर फीडिंग द पीपल हु आर पुअर आल्सो, बिकॉज हम्म। यू आर सेविंग ऑन फूड, and हम्म। those people, they do not have any access to that kind of food, but they are also getting food for that sense. So ये एक और रीजन है जिसके कारण लाला लाजपत राय ने, जब ड्रॉट वगैरह हुआ था ना, जब वॉर लाइक कंडीशन था और इंडिया की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, उस समय लाला लाजपत राय ने हम लोगों को ये बोला था कि मतलब पूरे के पूरे लोगों को कि आप लोग प्लीज एक दिन, हफ्ते में कम से कम एक दिन का फास्ट करा करो, ताकि बाकी लोगों को खाना मिल सके। तभी से मैसिवली लोगों ने, और तब से जो सीखा है ना लोग, अभी तक भी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं स्वामी इस चीज को, कि वो तब से शुरू किया था और आज तक भी वो फॉलो करते हैं कि एक दिन का फास्ट वो स्पिरिचुअल रीजंस के कारण नहीं, वो औरों की हेल्प करने के लिए भी रखते हैं। दिस इज सच अ वाइज रीजन, राइट? एंड वेरी। दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग सौम्य तुमने जो बोला, उसके साथ एक और, डिसिप्लिन के साथ साथ आपको सरेंडर करना भी तो सिखाता है ना, कि आपको ये पता है कि मैंने अगर खाना, मैंने खाना नहीं खाया सारा दिन, और मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मुझे कुछ नहीं होगा, टुमारो ऑल्सो आई एम गोइंग टू वेक अप, आई एम गोइंग टू वेक अप विद दिस मच एनर्जी। सो आपके अंदर वो सरेंडर करने की भावना भी तो आती है ना, कि परमात्मा मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि आई एम गोइंग टू बी अलाइव टुमारो ऑल्सो, राइट? या इससे इससे आपकी देखो, आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस भी हो जाएंगे। इट विल टीच यू डिटैचमेंट, आपको चीजों से दूर रहने का सिखाएगा। जब आप डिटैच हो जाओगे, आप सरेंडर करने लगोगे, इट्स नॉट जस्ट फॉर द फूड। हम लोग क्या समझते हैं फास्टिंग इज जस्ट फॉर फूड। नो गाइस, आपने एक लॉजिक एक पे लगाया है ना, वो हर एक एरियाज में आएगा। आपका मनी में आएगा, आपके रिलेशनशिप में आएंगे, आपके हेल्थ में आएगा, आपके करियर में आएगा। This is called isolating incidences. I can't quote this enough. This is quoted by Hal Elrod. आई थिंक मिरेकल मॉर्निंग में, आई थिंक यस, मिरेकल मॉर्निंग में उन्होंने एक कोट किया है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम जब एक डिसीजन लेते हैं ना, वी थिंक वो डिसीजन सिर्फ वो सिचुएशन के लिए है।
बट ऐसे नहीं है। वो डिसीजन जो आपने उस सिचुएशन को लिया है, वैसे सिमिलर सिचुएशन जब भी आएंगे, वो ही वाला लॉजिक अप्लाई होगा। सपोज आपके सामने खाना पड़ा है, ठीक है, आपका फेवरेट फूड पड़ा है और आप फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, एंड यू वेंट एंड हैड इट। आपने यू लॉस्ट द कंट्रोल एंड यू हैड इट, ठीक है। आपको लगता है ये डिसीजन सिर्फ यही इंसिडेंट्स के लिए है ना, यू आर थिंकिंग दैट ये इंसिडेंट अभी मैं मेरे से कंट्रोल छूट गया, बट नो, दिस विल रिफ्लेक्ट इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। कैसे पता है? काम में आपको आपको यू आर सीइंग पीपल आर टॉकिंग, you know they are gossiping, you know, sorry guys, you know that they are gossiping, and you know very well you should not go and talk. तब भी ये लॉजिक अप्लाई होगा, यू विल गो एंड टॉक बिकॉज योर माइंड विल बी लाइक, अरे एक ही बार है, थोड़ा जाके देख के तो आएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So guys, आप don't take fasting is just for food. That's our request. Fasting, when you do, it will apply in other areas of your life as well. एब्सोल्युटली। सो द थिंग इज, अब अगली बार जब भी हम लोगों को भूख लगती है, तब हमें सबसे पहला क्या करना है ना, टेक अ पॉज, यू नो, until and unless you get that crumbling feeling in your tummy, बहुत ज्यादा नहीं होता है, तब हमने सबसे पहले एक पॉज लीजिए। आप ये सोचिए, क्या सच में मुझे भूख लगी है? तो हेयर एट ब्रेन टू बॉडी हम लोग सबको बोलते भी हैं कि आप पहले पानी पीजिए। पहले पानी पी के देखिए कि अगर आपको वो प्यास है, क्या पता वो आपको प्यास हो, क्योंकि फेक हंगर्स भी तो होते हैं ना। आपको प्यास लगती है लेकिन आपको लगता है कि भूख तो नहीं लगी मुझे, और वो प्यास था, लेकिन आपने जब पानी पी लिया, आप सेशिएटेड हो गए, तब आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को डिप्राइव कर रहे हो पानी से, आप फेक कर रहे हो, फेक नहीं कर रहे हो। एक्चुअली योर बॉडी इन दैट टाइम इज क्रेविंग फॉर वाटर, it is soaking water from the other important areas of your body, you know, other organs of your body where water is actually required. सो बॉडी ने सिग्नल दिया कि प्यास लगी है, लेकिन आपको क्या लगा कि भूख लगी है मुझे, तो आप फिर हम लोग फिर उसमें ढूंसते रहते हैं। तो वो नहीं करना है हम लोगों को। पॉज लीजिए, फिर आप आगे बढ़ के देखिए। हाँ, इफ यू थिंक दैट नो, पानी पीने के बाद या आई एम स्टिल हंग्री, एंड बॉडी विल टेल यू, आवर बॉडी इज एन एक्सेलेंट मशीन, और वो आपको बता देगी कि यस दिस इज हंगर, दिस इज एक्चुअली हंगर। यू हैव टू डेवलप दैट गुड रिलेशनशिप विद फूड ना, तो आपको समझ में आ जाएगा उन चीजों के बारे में कि कैसे करना है। I totally agree दीदी, सॉरी आई हैव टू गिव दिस एग्जाम्पल। कल ही ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है। यू नो, वी से लाइक आपने बोला कि वी टेल आवर क्लाइंट्स जब भी भूख लगता है, फर्स्ट ड्रिंक वाटर, बिकॉज योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर, यानी कि बॉडी 70% वाटर है, बाकी सब वो 30% में आता है, तो बॉडी को पानी की ज्यादा जरूरत है और फूड की कम है। So I felt this hunger, and but I kept drinking water because I was feeling bloated. मैं travel किया था परसों and I was feeling bloated. So you know, I like I said कि नहीं खाना है, when you're feeling bloated, constipated and all, you should not have, should have lot of semi liquid type of thing. So मैंने बोला अरे यार अभी भी गैस गैस फील हो रहा है, ये तो भूख नहीं है, मैं पानी पीती हूँ। सो आई केप्ट ड्रिंकिंग वाटर एंड आई हैड टू गो पिक अप माई डैड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, एंड यहाँ पे पूरा हेडेक स्टार्ट हो गया मुझे, ठीक है। दिस, जब ये दोनों टेम्पल्स, वो हाइपोग्लाइसेमिक हेडेक बोलते हैं ना, जहाँ पे लो शुगर का हेडेक आता है, दिस स्टार्टेड पेनिंग। मैंने बोला शायद ये ब्लोटिंग का ही हेडेक है, but no, as soon as I came home, my mom had prepared food, and it made me go to the kitchen, it made me serve the, like I was walking involuntary, मैंने खाना खाया, और जैसे ही खाना खाया I felt better. So it was so loud. So I want to back you up when you said कि अगर हंगर लगता है ना तो खींच के लेके जाएगा for sure. दैट इज रियल हंगर ना, योर बॉडी विल डेफिनेटली टेक यू देयर। Yeah. और बहुत लोगों को ये भी है कि पानी पीने से वो भूख को मार रहे हैं आपको। मैंने अपने घर पे सुना है ये बात, बिल्कुल, कि लगता है कि भाई पानी पी के हमने पेट भर लिया तो हमारे भूख नहीं रही, फिर भी भूख बचेगी नहीं। अरे
हमारा बॉडी इतना बढ़िया मशीन है, दुनिया का सबसे बढ़िया मशीन है। आज तक हम एआई भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं। ऑब्वियसली देर इज नो परपेचुअल मशीन, वी आर परपेचुअल। परपेचुअल यानी कि हम अपने आप सारी चीजें कर सकते हैं। हम लोग, हमने कंप्यूटर को भी हमने बनाया है। तो आप सोचिए, इसको पता है सारी चीजों का कि कब आपको भूख लगनी है, कब आपको जवाब देना है, आपको कब बुखार करना है, हर चीज का हमारी बॉडी को पता होता है। हमारी बॉडी एक्सीलेंट मशीन है, एक फार्मेसी है ना। हिपोक्रेटिस बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज इन योर बॉडी ओनली, यू डू नॉट नीड टू गो एल्सवेयर। सीखना है, समझना है, पढ़ना है, लिखना है, सब कुछ आपकी बॉडी आपको समझा देगी। सो वी नीड टू लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ आवर बॉडी। Absolutely. And with that, we will conclude this first part of fasting. आज हमने सीखा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी तरफ से फास्टिंग क्यों करना है, क्या करना है, कैसे हमको फास्टिंग को व्यू करना है वगैरह. Over the series of next tribe meetups, we will teach you different types of fasting and what are its importance, कैसे एक्चुअल में किया जाता है फास्टिंग वगैरह. We will do that and all that. एंड एट द एंड जब नवरात्रा का टाइम है, हम 15 डेज का इमर्सिव कोर्स करने वाले, यानी कि हम एक्चुअली आपको डे बाय डे फास्ट करवाएंगे along with us. It is a course that we have designed and we have opened. हम इसके वजह से we have started this education as well कि आपको कैसे करना है, ताकि आप देखो कि आपको एक्चुअल में ऐसे करना है कि नहीं. So it will be a 15 days course with us. So we are open to enrollment. It will be a batch format because we want to pay attention to everybody. Like दीदी बोल रहे थे कि जब आप फास्टिंग ग्रुप में करते हो, इकट्ठे करते हो, तब आपको करने का इच्छा होता है. आप अकेले जब करते हो, हौसला टूट जाता है, right? And there is a process of fasting. There is a way of fasting which we will of course teach you, and we will help you do it as well in this 15 days so that you have hands on experience of fasting properly. ठीक है. इसीलिए if you are interested, please drop your names with us. We will send out the program details to you later on, but enrollments have begun and we would be happy to guide you through the, because बोल के समझाने में जो इफेक्टिवनेस है वो कम है, जो करके क्या बोलते, करके फील करना, हाँ करके. What are the dates, Soumya? नियर टू नवरात्रि, वी हैव 15 days prior, like नवरात्रि के 7 दिन और 7 days before that. And in this, Soumya, we want to promise them that definitely we will bring you closer to yourself and you will see massive fat loss in your body. Yes. This can be guaranteed. So Yes. guys, do not wait much and just get enrolled and you'll be feeling very, very light in your mind and your body too. Because हमने देखा है कि with our clients also, fasting is done very very not productively, and then they think fasting से result नहीं मिल रहा है. This is the myth we want to break, and that's why we want to do this with you guys. So yeah. With that, we will close this session from our both side where we have talked the most. Please, we are open to any questions and anything that you guys have. Please, Or please. you want to add to it, then please, है ना? Please They, just let us know कि if you want to add, then please go ahead and add. This is your platform, completely your will. Please go ahead, and if you want to add also, you can add on it. dates, we are like we said, we will be having the 7 days of Navratras is fixed, and then 7 days prior to that. Yeah, we'll build up करने के बाद we'll run the process, and we'll be hand holding you. Of course, we'll be doing that with you. Yes. So for any queries, we are open to queries. Please ask your queries if you have any, or if you want to add something to this discussion, then please go ahead and add. Hi, Soumya. Good evening. Hi. Hansi. Please. Thank you so much, first of all, for such nice detailed session. And I have some questions, like as you already mentioned something कि अगर किसी को fasting करनी है तो but you hadn't mentioned कि किस तरह की fasting करनी चाहिए. You already said that कि वो आगे further parts में आप discuss करेंगे. So I would like to ask कि किस तरह की fasting, is it like intermittent fasting, day fasting, or like which type of fasting? और इसमें एक और प्रॉब्लम है एक्चुअली, जब लोग फास्टिंग करते हैं तो उनकी इश्यूज होते हैं कि दे फील deprived of energy and they
एक्चुअली और कुछ सब इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, तो सबके लिए हम जनरलाइज तो वी कांट डू दैट कि फास्टिंग इज गुड फॉर एवरीवन, लाइक इट्स नॉट लाइक सिंगल सूट फिट फॉर ऑल, है ना। तो अब जैसे कि कोई अगर से कोई बॉडी बिल्डर है या कोई जिम गोनर है, if he is trying to gain muscles, and if we put into over the fasting, so may there's chances that there will be muscle wasting. And the next question is ma'am कि अगर one is want to like, अगर हमें डे टू डे लाइफ में अगर फास्टिंग को इंक्लूड करना है, तो व्हाट वुड बी द आइडियल मील पैटर्न, लाइक देयर इज वी एज अ डाइटिशियन, दैट आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन डाइटेटिक्स. So like we generally recommend like small frequent meals, है ना, every 2-3 hours के बाद कुछ ना कुछ छोटे छोटे small meals जरूर लीजिए. But is it a good thing? But as per idea तो हमें तो 2300 कैलोरीज लेनी चाहिए, 2300 कैलोरीज लेनी चाहिए, है ना. पर if you do fasting तो there will be है ना, तो I guess मतलब, so please put some light over it. Awesome. Oh, there are like bunch of questions here. Okay. Sorry, I just Okay, messed that's up. okay. So this fasting वही है ना कि इतना confusion है fasting को लेके, because कुछ ancestors के यहाँ से आ रहे हैं, वो भी टूटी फूटी है. अरे आज महाशिवरात्रि व्रत कर लो, आज ये है. they have not told us why we had to do it, right? वो क्लैरिटी नहीं है सभी को कि why you had to do fasting in the first place. सभी को पता है अरे बॉडी क्लेंस होगा, कैसे क्लेंस होगा, क्यों क्लेंस होगा, क्या रीजन से क्लेंस होगा, ये किसी को नहीं पता. दैट इज व्हाट वी वांटेड टू स्टार्ट एड्रेसिंग दिस. वी वांटेड टू बी वेरी क्लियर कि क्या हो रहा है फास्टिंग में. दैट वाज द सोल इंटेंशन फॉर दिस पर्टिकुलर tribe meetup. For that, like you said, over the there are so many fastings, as you have studied as well. There are so many fasting, and हर एक fasting का अपना अपना importance है और अपना अपना तरीका है, and you have to follow that thing. Be it आप साइंस बैक, न्यूट्रिशन बैक फास्टिंग्स है, जैसे कि आपने IF बोला. IF में सभी को एक ही पता है, the famous one, the 12 and 8. Right. 12 and 8, yeah, that 16 and that. बट उसके अलावा भी देर आर 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट? तो लोगों को पता ही नहीं है, जो चीज हवा में है उसी के बारे में पता है. सो वी वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप, एंड वी विल बी नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट IF, वाटर, whatever we have studied in nutrition, but we'll also be taking ये जो हमारे स्पिरिचुअल वाले फास्टिंग है, जैसे कि नवरात्रा का फास्टिंग हो गया, महाशिवरात्रि का फास्टिंग हो गया, तीज, जैनिज्म के बहुत सारे फास्टिंग है. लाइक they are unbelievably impactful and very strong fasting techniques. हम उन्हीं को भी हम थोड़ा थोड़ा we will try to explain that as well. Studying all of this, we have designed our program so that not just this, and evolution as well. Evolutionary science पढ़ के ही हमने हमारा program किया है, तो that is where we'll be incorporating. But different types we will explain step by step, because we want to do the due justice for those fasting. And you have said it very very rightly, fasting हर किसी के लिए नहीं है. Okay, fasting is not for everybody, but the same type of fasting is not for everybody, but there are different types of fasting for different types of people. Like for my body type, I have a very low fat, okay, I have good muscle mass and everything. I can't go on like a 7-day fasting and all. I'll go like my body will give up. My body will give up. If my mind is made up, my body will not. If my mind gives up, my body will give up. But for me, something like IF, the 12-8 thing suits very well, because I'll do it every day. So that much of energy loss, I can take a hit, that it will replenish for me the next day. Correct? But somebody who is obese, for them there will be a very different kind of fasting. Somebody who is building a body, for body to build also there has to be cleaning mechanism. They can also, in fact, people who climb mountains or athletics, जो भी है, they do everything on fasting mode. They don't do it on high, you might know that as well. They do it on an empty stomach mode as well. They just take liquid diet, and that's how they perform better. Because like I said, your body performs best when it is not digesting food, because it has energy for rest all other things.
and there are lot of reels out there. हमको ये लगता है कि हमारा बॉडी गिव अप करता है ना? We think our body gives up. It's your mind that gives up. There are why people have coaches, performance coaches or mentors, and why? Because they make the mind not give up. If your mind doesn't give up, your body will never give up. There are people, if you want, you can read this book called It Can't Hurt Me, or It Can't Hurt Me, something like that, by, आपको पता है दीदी क्या है ना? ये उनका है ना, ये जो अफ्रीकन ओरिजिन के पर्सन है ना, उनका है ये मतलब। गॉगिन्स करके है हाँ, रॉक क्या, कौन सा गॉगिन्स है? हाँ, कुछ गॉगिन्स है। ही डेविड गॉगिन्स, डेविड गॉगिन्स, या डेविड गॉगिन्स का बुक है, ऑटोबायोग्राफी बुक है। बहुत अच्छी बुक है। ही हैज क्रैक्ड द यूएस मिलिट्री का जो एग्जाम रहता है ना, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट टफेस्ट एग्जाम, जो बिना खाना, लाइक हैविंग फूड दे टेक, हाथ पांव छिले हुए रहते हैं, ब्लड लीक होता रहता है, एवरीथिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट स्टिल दैट मैन हैज still achieved, and he was Marine Corps. Not only that, after that he has done lot of triathlons, Ironman, वो ये बहुत कुछ किया. He has pushed his body. Look at his body, या उसकी बॉडी देखोगे ना इंदर, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, लाइक ही इज अ वाओ पर्सन। वो बुक मैंने ऐसे पढ़ा है, पता है, लाइक आई लिटरली लाइक ऐसे करके पढ़ा है, लाइक इट इज, एंड बट हिज माइंड वाज नॉट गिविंग अप. तो ये वो मतलब वो जब 9 किलोमीटर की, जैसे आर्नोल्ड का ले लो ना, आर्नोल्ड क्या बोलता था, अब आर्नोल्ड शिवान वो क्या बोलता था, वो भी तो इतना ज्यादा थोड़ी खाते थे। वो उनका ये था कि जब लोग रुक जाते हैं ना, तब मैं काम करना शुरू करता हूँ। जब जिम में जाके थकान हो जाती है, 6 घंटा काम करने के बाद थकान हो जाती है, तब मैं काम करना इसलिए शुरू करता हूँ। सो दिस इज व्हाट, कि आप जब अपने माइंड के ऊपर है आपका, कि आप अपने माइंड से कैसे काम करवाओगे, आपकी बॉडी फिर उसको फॉलो करती है। बॉडी के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, इट्स योर माइंड दैट नीड्स एनर्जी, एंड एनर्जी माइंड के लिए तभी आती है जब आप फूड नहीं ले रहे हो. But again, you'll have to understand yourself कि you'll have to understand yourself, you'll have to understand the client body कि जनरलाइज नहीं कर सकते हाँ, इसको। उनका क्या है, उनको किस तरीके से उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगा. You'll have to be aware of that, then only you'll be able to help them do the fasting in a right way, and they will feel 100x times of energy. I'm telling you that they will perform even better than this food. Yeah. And you want to answer that, Soumya, having multiple in frequency of the food? हाँ, so we do things very differently here at Brain to Body, Indrajit. What we have studied from nutrition point, yes, they say कि depending on health condition, like if you are a diabetic, we give every 2 hours or 3 hours, right? Because उनका insulin वगैरह वगैरह. But our approach is little different. We take mind into in equation. Like I said, अगर आपका mind बना है तो आप कुछ भी कर सकते हो. So what we do is we empower the mind. And we have seen people no longer, they come with this extensive eating habit, every 2 hours munching, cravings and all that. Over the period of time, they themselves, we say please have, they're like nahi, bhook hi nahi lag rahi hai, because their mind is empowered, their soul is empowered. The energy drain that we all feel is not physical drain, it's the एनर्जी सोर्स का ड्रेन. जो नेगेटिविटी हम ले लेके हमको जो एनर्जी ड्रेन होता है ना, उसके वजह से आपको ज्यादा सुस्ती होती है. So that is how we kind of address it. But yeah, if that again depends on person to person, but in the end the goal is that that person is happy, content and energetic in whatever he's doing. That should be the end goal. Didi, you want to add anything if I missed anything? Nah, you did not miss, I guess. But yes, matlab, when you are working on your mind, na, everything becomes very easy for you. And this is again something called seafood की तरह ही है. When you see your peers doing that, ना, आपको लगता है कि यही सही है. जब इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तब वो बात सही हो जाती है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जब बहुत सारे लोग, जब मासेस उसको फॉलो करें, वो नहीं. आप जब अलग काम करते हो, इट इज ऑलवेज यू नो रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड बाय वन पर्सन. एक सिंगल पर्सन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करता है, फिर उसकी जर्नी में ऐड ऑन होते जाते हैं. कि यू नीड टू थिंक कि आप हम लोग जब डाइट देते हैं किसी को, जो भी हम लोग करते हैं, तो आपने देखा होगा ना कि बहुत बार क्या होता है, प्रोग्राम के बाद दे रीगेन दैट.
जितना उन्होंने लूज किया था दे रीगेन दैट. व्हाट वी डू हियर इज कि आपका वो वैसा सिस्टम रहेगा. यू योरसेल्फ विल नॉट गो एंड बी अ स्लेव ऑफ फूड. वी रिमूव द स्लेवरी फ्रॉम फूड. और उसका डिजाइन हम लोगों ने इस तरह से कर रखा है कि ऑटोमेटिकली यू विल नॉट वांट टू हैव meetha and all, even after the completion of program. They design their own diets actually in our case. So we just give them the guidelines and they design their own things. So We, yeah, we do we not. don't even do calorie deficit in the Yeah, gym. we We do not. don't do calorie deficit. I think Namrata is here. Yeah, Namrata is. Namrata, if you can speak, it would be great, of course. We don't do calorie deficit, but they still go through tremendous changes in their body because their mind is changed. Their Yeah. mind, their belief system is changed. Yes, Soumya. स्ट्रांगली एग्री बट सौम्या आई गेस जब हम फास्टिंग करते हैं तो कैलोरी डेफिसिट तो वो क्रिएट हो ही जाता है और वो भी दैट विल बी मतलब हैवी कैलोरी डेफिसिट है ना आई गेस Over मतलब वो आई गेस 500 कैलोरीज के भी नीचे चला जाता है जब हम फास्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा फ्रूट्स नहीं देते अगर फास्टिंग करें तो अगर 3 फ्रूट्स या 4 फ्रूट्स भी ले रहे हैं तब भी दे विल बी 500 कैलोरीज अराउंड दैट तो देयर विल बी लाइक अगर 1 वीक के लिए कोई 1 वीक 1 वीक का तो के हम लिए लोग हम लोग ना रेकमेंड करते भी नहीं है 1 वीक का. अभी अभी तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा करा नहीं है 1 वीक का. अभी हम लोग छोटा छोटा करके चलते हैं ना, उस हिसाब से करेंगे. तो द होल ओके प्रोग्राम विल बी डिजाइन लाइक दैट. preparation, इसीलिए 15 दिन का कोर्स है. इट इज नॉट डायरेक्टली 7 days. इट इज 15 days का कोर्स. द फर्स्ट 7 day इज प्रिपरेशन. there's a process for fasting जो हम which is not told by anybody from like from our ancestors, from even science perspective. हमने भी when I and Dee we did this course specifically, that's when we realized, okay, this is the way actually it should, and it makes sense. When we both did it, tried for ourselves, that's when we try and understood, okay, ये process है. We will be walking through that कि fasting को 100% सक्सेस बनाने के लिए आपको क्या prerequisites है. you'll have to complete those prerequisites. आप ऐसे ही आज, हाँ अरे यार मैं थोड़ा मोटी दिख रही हूँ चलो फास्टिंग, नो, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. एक्चुअली वन मोर एडवाइस वी विल ऑल गिव इट टू यू. सपोज आपने आज रात बैठ के जंक फूड खाया है. You have gone out, you have partied, you have eaten pizza, baba, whatever. Please next day fasting पे मत जाओ. Why, we will tell you over the period of time. Please don't go for fasting. वो compensation करना, वो ये करना, just don't do it. You will understand why. If you stick with us, you will understand why. Because हम जब बताएंगे ना इंद्रजीत, आपको लगेगा, यहाँ अंदर से आपको लगेगा कि ये सही बात है. आई एक्चुअली आई आल्सो रियलाइज दैट आप सही कह रहे हो कि फास्टिंग जब करता है ना मैंने भी एक किया था डिस्पाइट मैं बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करता हूँ फास्टिंग बट व्हेन आई डिड दैट तो आई फेल्ट द डिफरेंस एक्चुअली Yeah. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस That Yes. is out of your comfort ना. We are used to eating. हम लोग दिन में 3 बार खाना खाने का हम लोग used to है ना इंदर. हम लोग खाते रहते हैं. हमें पता है कि शाम सुबह मेरे घर में ये रूटीन है. 8:30 बजे ब्रेकफास्ट होगा, 1:30 बजे लंच होगा और रात को जितना भी 8 बजे 9 बजे डिनर होगा. अभी हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऐसे. तो ये हमने बताया ये टाइम टेबल हमारी बॉडी को. तो हमारी बॉडी के माइंड के कारण हमारी बॉडी उस तरह से बिहेव कर रही है. बट ऐसा नहीं है. जब व्रत होते हैं तब तो हम लोग बहुत आराम से रहते हैं. तब हम लोगों को नहीं लगती. तब हमारा माइंड सेटअप है ना कि वही व्रत है तो मुझे नहीं खाना है. अपने आप ही आप पूछ के देखना मॉम को. जब फास्ट वो कहेंगी नहीं नहीं व्रत के दिन मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन बाकी दिन गोलगप्पे हो रहे होंगे वो सब कुछ खाएंगे. राइट. तो ऐसा एक्चुअली इट इज ऑल यस इन माइंड के अंदर है. फास्टिंग के लिए ना दी बहुत सारी कंफ्यूजन है एक्चुअली या जैनिज्म में तो बहुत ही अलग तरह की फास्टिंग होती है जैनिज्म के तो प्रिंसिपल्स ही मतलब उनके ऐसे हैं कि कम खाओ कम खाओ और नम खाओ और उनका ऐसा है और जो हिंदुइज्म में फास्टिंग होती है उसमें तो वो चिप्स चल रहे हैं और ये चल रहा है और वो चल रहा है वो उस टाइम हाँ पे तो मेरे को लगता है कि वो सरप्लस में चले जाते हैं इवन खाते खाते सरप्लस में चले जाते हैं. मैं बता रही हूँ ना मेरी फ्रेंड का भाई वो बोलता है कि मुझे फास्ट रखना है भाई, मुझे बहुत लॉस हो जाता है, मुझे कम पकौड़े खाने को मिलते हैं फिर. तो हम्म लिटरली सेड. एग्जैक्टली उस दिन कुट्टू के आटे के पकोड़े बनते हैं अलग अलग तरह की डेलिकेसीज बनती हैं मैंने देखा इंदर हमारे पापा जी जो है वो मंगलवार का व्रत रखते थे. अभी तक भी रखते थे. तो मंगलवार सारा दिन कुछ नहीं खाना, लेकिन रात को चूरमा खाना है. चूरमा. हाँ तो चूरमा तो इतना हाई कैलोरी फूड है या सो इतना ज्यादा कैलोरी डेंस हाई कैलोरी फूड, हाई शुगर फूड, बट दे आर हैविंग दैट. बट उस समय पे लोग ना काम करते थे यार.
अब हम लोग उतना ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं होता। आप जाओ ना, 1 किलो घी पियो और जाके आप रेस मार के आओ, बहुत ज्यादा माउंटेन की चढ़ाई करके आओ, तब आपका शायद वो हजम हो जाएगा। बट वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग दैट मच ना। Yeah. So That's true. yeah. There So thank you so much for such detailed session, such knowledge gaining session. Thank you for being I so enjoyed thoroughly. open-minded and taking it in. Thank you so much. Means a Thank you so lot much. कि जब कुछ पढ़ाई किया है उसका कुछ अलग ही सुनने में मिल रहा है तो we feel resistance come up, but you are so open. So thank you so much for Yeah. doing Very, very open you are, and thank you so much, Inder, for being here. Thank you. Yeah. Thank you. Thanks, Soumya. that. Thank you. Thank you. Yeah. So if Anybody? you have any queries, then please, Hannah, we can take over the queries. Else we just say bye bye and log in again the Friday, अगले Friday को अगला episode के लिए. तो फास्टिंग करना अच्छा नहीं लग रहा है शायद. People know कि हमको कैसे करना है. द मेन रीजन हम ये फास्टिंग का सीरीज इसीलिए लाए बिकॉज पीपल आर ईटिंग साबूदाना वड़ास एंड मिर्चीज एंड And they have an intention to lose their weight also, ना, lose their body. हाँ They have an intention for that. And मुझे पता है, मतलब मैंने भी इस तरह के काम कर रखे हैं कि भाई जो खुद ने किया है ना वो वाली गलतियां, उसी के कारण हम लोगों को अवेयरनेस है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करते हैं. सो ये, और कहीं हमारे यहाँ पर तो ऐसा भी है ना, हम लोग हॉस्पिटल भी वो चूज करते हैं जहाँ पर बहुत टेस्टी छोले भटूरे मिलते हैं. अटेंडेंट ये देख के हॉस्पिटल चूज करते हैं कि हाँ छोले भटूरे वहां पर अच्छे मिलते हैं. हाँ लिटरली लिटरली. आई नो. सो हम लोग अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना सौम्या, कि हम लोग बोलते हैं कि भी कुट्टू के आटे के पकौड़े नहीं खाने, तो फास्टिंग कैसे करेंगे यार, कुट्टू नहीं खाएंगे. बकव्हीट इज एक्चुअली वेरी गुड, लेकिन उस करने का तरीका अलग है ना way उसका. to eat it is needs to be changed. Yeah, yeah. थोड़ा you will see, you will enjoy fasting with us. You will Yes, feel absolutely. like भाई मैं क्या कर रही हूँ, like fasting ही नहीं लग रही है. That is our aim. We want to bring revolution in fasting. Yes. दैट इज फॉर स्लेवरी हटाना है हम लोगों को ना, जो हम लोग फूड के गुलाम हो जाते हैं, स्लेव हो जाते हैं हम लोग की, वो स्लेवरी हटानी है बस हम लोगों को. If you see a plate of food, you should be able to walk by it without saying, I want to eat it. If you see a cup of ice cream, then also you should be able to say no to it. Voluntarily, not involuntarily. Voluntarily, अपने आप मन से आपको ना कह पाओगे, हम गारंटी करते हैं कि आप प्रोग्राम के बाद आप मना कर पाओगे उस आइसक्रीम. मतलब आपको आम पसंद हो, आपको आइसक्रीम पसंद हो, आपको खजूर पसंद, कुछ भी आपको पसंद हो, आप बहुत आराम से उस खाने को ना कर पाओगे. और हाँ भी, जब आपको खाना है तब खा भी पाओगे. ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए आप नहीं खा रहे हो, आप बस गुलामी नहीं कर रहे हो. आपका पेट भरा हुआ है तो आप जाके वो डेजर्ट नहीं उठाओगे कि मुझे खाना है. यू नो दैट यू हैव दैट कम्युनिकेशन विद फूड, राइट? सो ऐसा अपना माइंडसेट ही तैयार हो जाता है. Yes, Biti ji. I just want to ask about करवा चौथ व्रत की क्या ऐसा मतलब खाया जाए कि जिससे कि दिन भर का एनर्जी लेवल बना रहे और सुबह भी हैवीनेस ना फील हो. मतलब वो चलो, आप वैसे भी तो बहुत टाइम है, पर फिर भी मैंने कहा पूछ लेती हूँ. करवा आप चौथ प्रिपरेशन. क्या ऐसा माइंड प्रिपरेशन करो ताकि आपको एनर्जी डाउन फील ही ना हो. That should be the focus, like because the main reason why you eat food, हम क्यों खाना खाते हैं? सब लोग एनर्जी बोलते हैं, है ना? एवरीबडी सेज कि एनर्जी एनर्जी. फूड गिव्स अस एनर्जी को क्या क्वांटिफाई करते हैं? कैलोरीज करके बोलते हैं. बट कैलोरी इज नॉट अ राइट मेजर फॉर इट. वो उसमें जीव है, दैट इज प्राणिक. प्राणिक बोलते हैं ना, प्राण. आप वो चीज लेते हो उससे. when you have food, you are taking the pranic energy from it. ठीक है? कैलोरी, अगर if you're telling me one bowl of rice gives you maybe 1200 like 600-800 calories suppose, ठीक है? आप वो एक फ्रूट खा के भी वही कैलोरीज मिल रहे हैं. करेक्ट? कैलोरी इज नॉट अ राइट मेजर टू से कि मुझको उससे एनर्जी मिल रही है. आप क्यों खा रहे हो? ताकि आपके जो अंदर से लाइफ फोर्स कम हुआ है उसको आप रेप्लेनिश कर रहे हो. ठीक है? तो इफ यू आर फीलिंग थकावट ड्यूरिंग करवा चौथ, वन ऑफ द मेन डायमेंशन ऑफ फास्टिंग इज स्पिरिचुअल कनेक्ट. मीन्स आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हुए हो.
जो बंदा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाता है ना, उसको एनर्जी ड्रेन कभी नहीं फील होता है. इनफैक्ट दे फील हाईएस्ट एनर्जी. दैट इज व्हाट वी सेड ना, कि एक्चुअली यू शुड फील हाईएस्ट एनर्जी बिकॉज यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम एन अनलिमिटेड सोर्स. फूड तो लिमिटेड सोर्स है. अभी खा लिया, आधे घंटे में फिर से भूख लगेगी आपको. सो डोंट. नहीं, मेरे को सिर्फ इतना कहना था, बिकॉज आपकी बात तो बिल्कुल बिल्कुल सही है और कभी भी एनर्जी लो नहीं लगी। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि पहले जो हमारे मदर लॉ कहते थे हम वो खा लेते थे, धीरे धीरे फिर चेंज किया कि नहीं मम्मा फेनिया नहीं अच्छी लगती, चलो उसको शिफ्ट कर दिया। अब हर करवा चौथ पे अलग वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, ये खाना है वो खाना है वो खाना है, इसलिए मैंने पूछा। और बिल्कुल सही बात है कि माइंडसेट है। कभी भी नहीं लगा कि एनर्जी लो है, जब मम्मी बताते थे वो खा के भी नहीं लगा, जो ये अब बताते हैं तो भी नहीं लगा। मैंने कहा मेरे खाना क्या है समझ नहीं, कोई We कुछ will बोलता Mind. we will walk you through the process in the next coming sessions, and we will guide you through it step by step, because बहुत वास्ट है सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा वास्ट है. ऐसे वही प्रॉब्लम हमारे में वही है कि छोटे छोटे रील्स आते हैं, ये खा लो वो खा लो विदाउट कॉन्टेक्स्ट. सो दैट इज व्हाट वी वांट टू चेंज, है ना? दी, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस एब्सोल्युटली, मतलब वो जो रील्स आते हैं ना वो अनऑथेंटिक होते हैं, हम लोगों को नहीं पता चलता, हम लोग उनसे समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये आ रहा है, ऐसे करना है ऐसे करना है, पर ऑथेंटिसिटी नहीं होती है ना उसकी. व्हेन इट इज साइंस बैक्ड, व्हेन वी हैव गॉट दैट स्पिरिचुअल बैकनेस, तब हम लोगों को पता चलता है कि कैसे हम उस चीज को डील करें, कैसे हम लोग को करें. हम अगर जितने भी आप डाइट प्रोग्राम्स देखोगे करोगे तो उसमें आपको लगेगा कि नहीं, मतलब आप जब एवोल्यूशन के हिसाब से अपना रिसर्च शुरू कर दो कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से देखो कि हम लोग तब क्या थे और हम लोग अब क्या है, स्ट्रेस से लेकर एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस, राइट. सो अगर हम उसके कंटेक्स्ट में सोचेंगे तब हम लोगों को फास्टिंग का भी समझ में आ जाएगा और फीस्टिंग का भी समझ में आ जाएगा. क्यों तब इतना ज्यादा खाते थे वो, जैसे सौम्या ने बताया, इसीलिए खाते थे ना क्योंकि पता ही नहीं था कि अगली बार उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एरिड लैंड में लोग, एरिड जो लैंड्स हैं जैसे हमारा पंजाब हरियाणा इन सब जगहों में, यहाँ के लोगों का व्यवहार ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा है, तो वो सब कुछ एवोल्यूशन के हिसाब से है. आपको लगेगा ना कि रूखा बोलना ये सब क्योंकि वो लैंड ही एरिड है ना, ज्योग्राफी का उस पर असर पड़ गया. तो एवरीथिंग इज सो इंटर रिलेटेड. हम लोग किसी भी चीज को ना इस तरह से जनरलाइज कर ही नहीं सकते हैं. एक टर्म होता है जो कि हम लोगों को सभी जगह के ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज होता है. इस तरह से बॉडी का खान पान भी जो होता है ना वो आपके एवोल्यूशन के हिसाब से होता है कि आप तब क्या करते थे और आज क्या करते हो, उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है. तो या और आपका बहुत सारे लोगों को ये है ना कि मेरा फास्टिंग करने पे भी वेट नहीं करता है ना? आप अपने पास्ट में जाओ, अपने एंसेस्टरल पास्ट में जाओ. सी इफ दे हैव गॉन थ्रू वॉर्स, सी इफ दे हैव गॉन थ्रू फेमिन, सी इफ दे हैव गॉन थ्रू ड्रॉट्स. अगर आपके एंसेस्टरल पास्ट में ये चीज है तो आप फास्ट कितना भी कर लो आपका बॉडी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज इट रिमेम्बर्स दैट टाइम. वो बोलता है अरे खाना नहीं मिल रहा है तो मैं पकड़ के बैठता हूँ. आई आप होप. इंटेंस भी वर्कआउट करते हैं सौम्या, जब हम लोग इंटेंस जब वर्कआउट करते हैं तब भी ऐसा होता है ना कि आपकी बॉडी के ऊपर वो अलग तरह का स्ट्रेस हो जाता है, आपकी बॉडी को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, एंड देन इट स्टार्ट स्टोरिंग फैट, राइट. या तो हर किसी पर्सन का ना समझ, यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू बेस्ट. डिसाइड. No doctor can heal you. No nutritionist can make you slim. No, nothing, no medicine can fix you. Only you can fix yourself. You have to be open to taking education and educate yourself. है ना? जो मेरे लिए वर्कआउट होता है वो दीदी को नहीं वर्कआउट होगा, जो दीदी को वर्कआउट हो रहा है वो आपको बिल्कुल भी नहीं वर्कआउट होगा, है ना? बट हमको ये बोला गया था कि ये पहन लो आपको सबको फिट आएगा. That is what we will change together. Everybody here who has come here, एक एक करके हम ये स्मैश करते जाएंगे. हाँ, we are so thankful कि आप हो यहाँ पे for helping us create a revolution. Thank you so much. Thank you. Our answer will be given slowly and steadily. नहीं, of course, I am waiting for it. करवा चौथ आने से पहले आपको आंसर मिलेगा. श्योर. ठीक है. थैंक यू सो मच. सो Alright guys, if any, प्लीज अपना अपना क्वेश्चंस लेके आओ, बिकॉज वी नो फास्टिंग के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस है सभी लोगों का.
आप लोग ना अगले फ्राइडे तक सोच लो क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं आपने और आप पूछ लीजिए हम लोगों को। आप हमारे वीडियोस के नीचे भी पूछ सकते हैं, इसका हम लोग यूट्यूब में डालेंगे, इसके नीचे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड प्लीज कम अप विद योर क्वेरीज एंड बी क्लियर अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट। नेक्स्ट फ्राइडे को आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा इसके ऊपर, एंड विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। आज जो भी हमने समझा है उस पे कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज यू कैन आस्क दैट मोर, सो वी कैन टॉक अबाउट इट। बिकॉज आपका आई थिंक मेनली सबका फूड के बारे में ही है दीदी, कि मैं ये इसका ये खा सकती हूँ, इसका वो खा सकती हूँ एंड ऑल दैट ना। कोई तो बात नहीं, वो भी उसका भी पता चल जाएगा। अभी हम लोगों को उसका साइंस पता चला है ना, आगे जाके हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, वो भी पता चल जाएगा। we'll guide you guys. Thank you so much, everybody. Namrata, it's okay. We will kind of take you later on. Yes, thank you. All right, guys. Yes, I'm Thank you. Thank you. Bye-bye. excited by them. Yes. Thank you so much, Inder. Thank you Thank you. everyone. Thank you everyone for taking out time for us and giving such an important time to us. Thank you so much. This evening weekend start हो चुका है, फिर भी आप लोग यहाँ ब्रेन टू बॉडी में हो। आपका अपना ट्राइब है, ये आपका अपनी फैमिली है। प्लीज आया कीजिए, अपनी बातों को रखा कीजिए। दिस इज ये मेरा और सौम्या का एनवायरनमेंट नहीं, हम सभी का है। So let us just make this revolution go on, carry on with this revolution and educate people and educate ourselves, one at the same time transforming करना लोगों का हमारे थ्रू बहुत important। We are just a channel। हमारा पर्पस ही ये है कि दुनिया में रोशनी को फैलाना। So let us just carry on with it। Thank you. Thank you so much, guys. See you next Friday, same time, 6 p.m. on the same topic again. Thank you so much. Love Bye. you guys. Bye. Bye. Thank you so much. Bye bye. Have a great weekend. Thank you, Sam, too. Bye. Bye.